So, going over to the next page, which is page number 7 of your geography book. So, we were reading on the previous page that leftover from the creation of sun and became the third planet from the sun. What we were discussing was that how the earth was formed. We discussed that initially it was just in the state of gas. The gases, by the passage of time, the gases got converted into liquids, and the liquids ultimately, by cooling effect, they became solids. So, the earth became the third planet from the sun. It is the third farthest from the sun. I hope you know it, na? It is the third farthest planet from the sun. Like other planets, it started orbiting around the sun. It grew larger by attracting more material like dust, asteroids, and rocks by force of gravity. You must be knowing that what is gravity. Gravity is the force of attraction, or we can simply say that everything attracts every other thing. So the bigger things, they attract the smaller things. So when the earth was formed, it started attracting the smaller asteroids and the rocks which were there in the atmosphere. So it attracted them and it got bigger and bigger, right? The earth is the fifth largest planet in size and third in order of distance from the sun. So, the earth is the fifth largest planet in size. In our solar system, the earth is the fifth largest planet in size, and it is third in order of distance from the sun. So, what does this mean? That in our solar system we have 8 planets, and Earth, if we see their sizes, the Earth is the fifth largest planet in size, right? And if we see the distance from the sun, it is 1, 2, and third. 1, 2, third from the distance in any order of distance from the sun. It is the only planet where life exists, as Earth is at a right distance from the sun. We believe that Earth is the only planet where life exists, and we believe so because we know that it is at the right distance from the sun. If we are farther away from the sun, the Earth would have been very cool, and it would not have been possible for life to exist. And if we would have been nearer to the sun, it would have been very hot, and again it would not have been possible for life to exist. Its temperature is not too cold nor too hot. That's what I told you before, that the temperature of Earth is not very cold and neither very cold nor too hot, right? It average it its average distance from the sun is about 93 million miles. So, as we know that the Earth is moving around the sun in a orbit, So, the distance of this orbit from sun is 93 million miles. Okay? So now we are clear that where does the earth exist in our solar system, and we have talked about a few details about of the earth. And do you know that what is Big Bang theory? According to the most widely accepted theory, the universe started approximately 15 billion years ago as a result of a gigantic explosion from a single point. This is known as Big Bang theory. So, what is a Big Bang theory? According to this theory,
the making of this universe started about 15 billion years ago as a result of a big or gigantic explosion from a single point, and then the universe started its making, right? It came into making then. Now we go over to the layered structure of the earth. Now we are going to the more details of earth. So we'll discuss the layered structure of the earth. Scientists have explored the internal structure of earth with the help of equipment. साइंसदानों ने क्या किया है कि जी बहुत सारे आलात इस्तेमाल करके ज़मीन के अंदर तक के जो सारे हालात हैं वो मालूम किए हैं. Earth is made up of several concentric layers with one inside another. ज़मीन जो है ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से बनी हुई है कि क्या है कि इस मुख्तलिफ़ तहों में बनी हुई है, और एक तह के अंदर दूसरी तह, दूसरी तह के अंदर तीसरी तह, इस तरह ये ज़मीन बनी हुई है. सो अर्थ इज़ डिवाइडेड इनटू 3 मेन geological layers based on chemical composition and structures. So ज़मीन को जो है ना, हम तमाम ज़मीन जो है इसको हम 3 हिस्सों पर मानते हैं कि ये 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है. ये तीनों हिस्से जो है हमने इनको कैसे इनको तकसीम करते हैं, हम उसकी जो कीमियाई साख्त है ना, कीमियाई साख्त जो है और उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको देख के हमने उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया कि इन 3 टाइप्स में हमने कहा है. हम पहली टाइप को वी कॉल क्रस्ट, सेकंड टाइप इज़ मैंटल एंड थर्ड इज़ कोर. क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. क्रस्ट, मैंटल एंड कोर. So what are the 3 main layers of the earth? That is, first is crust, then is mantle, and then the core, right? Before going further, we see there is another very interesting fact given. Do you know the depth is equal to 5.7 kilometers, continental thickness is 30 to 4 kilometer, ocean thickness is 5 to 6 kilometer, oceanic crust age is 200 million years ago. These are the facts that we will study here. The crust. The crust is the outermost solid layer of earth, normally about 8 to 40 kilometers thick. ये जो क्रस्ट है ना, ज़मीन की सबसे वाली जो ऊपर वाली सतह है, इसको बोलते हैं क्रस्ट. क्रस्ट इसको बोलते हैं, ज़मीन की सबसे ऊपर वाली सतह को बोलते हैं क्रस्ट. इसकी जो मोटाई है ये 8 से 40 किलोमीटर तक है. ठीक है. द क्रस्ट इज़ द आउटरमोस्ट सॉलिड लेयर ऑफ अर्थ and normally about 8 to 40 kilometers thick. ठीक है. Nearly 1% of Earth's volume and 5% 0.5% of Earth mass is made up of crust. यानी अगर हम ये सोचें कि ज़मीन का टोटल जो है, मुकम्मल ज़मीन का जो वॉल्यूम है, उसका ये क्रस्ट कितना हिस्सा है, तो हम कहते हैं कि जी ये तकरीबन 1% ज़मीन के वॉल्यूम है. ठीक है. और उसका मैस जो है ये तकरीबन 0.5% जो है. ठीक है. यानी पूरी टोटल ज़मीन के ऊपर जो सबसे वाली ऊपर जो सतह है, जो सख्त वाली सतह है जिसे क्रस्ट बोलते हैं, वो जो है सिर्फ 1% है टोटल ज़मीन की मोटाई का, या उसकी हम कह लें उसके वॉल्यूम का. और उसकी मास जो है वो तो इवन उससे भी आधा रह जाता है. ठीक है. आपको पता ही है ना, कई चीज़ों का मास ज़्यादा होता है पर कई दफ़ा उनका वॉल्यूम. So we were talking that the crust is the outermost solid layer of Earth, normally about 8 to 40 kilometer thick. Nearly 1% of the Earth's volume and 5% of the Earth's mass is made up of crust. यानी हमारा जो वॉल्यूम जो है वो 1% है और मैस उसका सिर्फ 5% है टोटल ज़मीन का जो क्रस्ट है. The thickness of the oceanic and continental crust is different. यानी ये जो क्रस्ट है ना, समुंदर की तह में जो क्रस्ट है
या ज़मीन के ऊपर जो क्रस्ट है, इन दोनों की चौड़ाई में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मसलन अभी जो द ओशियानिक क्रस्ट इज़ थिनर अबाउट 5 किलोमीटर एज़ कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 30 किलोमीटर। यानी ज़मीन जो खुश्की है, इस इलाके में जो ज़मीन की ऊपर वाली क्रस्ट जो है उसकी मोटाई 30 किलोमीटर के करीब है, जबकि जो समुंदर हैं उसकी उधर वहाँ पर समुद्रों के पानी के नीचे जो क्रस्ट है ना, उसकी जो मोटाई है सिर्फ 5 किलोमीटर के करीब है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ क्रस्ट आर सिलिका एंड एल्युमिनियम। जो जो क्रस्ट जो है ना, ज़मीन के ऊपर वाली तय जो है सारी, इसकी जो बुनियादी तौर पे ये बनी हुई है किस चीज़ से? दो मटेरियल्स हैं, सिलिका और एल्युमिनियम। इन दो चीज़ों से मिलके ये बनी हुई है, ठीक है, सिलिका एंड एल्युमिनियम, ठीक है। द डेंसिटी ऑफ मटेरियल ऑफ क्रस्ट इज़ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। डेंसिटी जो है ना, उसकी मेजरमेंट जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर वगैरह से ली जाती है, उसका पैमाना जो है ये है। तो मगर जो हम बात जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि जो ज़मीन की जो सतह है वो बुनियादी तौर पर बनी हुई किन दो चीज़ों से है? सिलिका और एल्युमिनियम, सिलिका एंड एल्युमिनियम, इनसे मिलके बनी हुई है। और इसकी जो बना हुआ किस मटेरियल से है, वो उस मटेरियल में ज़्यादातर जो है ना सिलिका और एल्युमिनियम, इसकी बुनियादी तौर पे वो बनी हुई है, ठीक है। यानी मेजर जो चीज़ें हैं, ज़्यादातर चीज़ें जो इसमें बनी हुई हैं ना, ये जो ऊपर वाली क्रस्ट या ऊपर वाली तह सी जो बनी हुई है, वो बनी हुई किस चीज़ से? कि वो सिलिका और एल्युमिनियम से बनी हुई है। अच्छा, अब ये देखें, आपको एक तस्वीर से नज़र आती है, जैसे एक काट के जैसे तरबूज को काट के एक पीस काट देते हैं ना, तो इससे हमें पता चलता है कि ज़मीन की ये सबसे ऊपर वाली क्रस्ट जो है, देखें कितनी नीली रंग की जो नज़र आ रही है, कितनी बारीक सी है, राइट, इट्स सो थिन, ठीक है। तो इसके बाद जो है ये जो है मेंटल है, ठीक है, यहाँ तक मेंटल है, फिर उसके बाद ये कोर है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें मज़े की बात ये है, इनर कोर जो बिल्कुल ये यहाँ पर है, ठीक है, उसको बोलते हैं आउटर कोर जो है, ये यानी कि ये पूरी कोर है, ठीक है, और ये मेंटल है, ठीक है, और ये ऊपर क्रस्ट है। क्रस्ट देखें कितनी बारीक सी नज़र आ रही है, टोटल का कितना बारीक सी नज़र आ रही है, राइट। ये इस तरफ ज़मीन के सब तरफ ये क्रस्ट है, ठीक है। सो वी कैन, अगर इस तस्वीर को आप बनाएं खुद अपने हाथ से और कुछ दफ़ा प्रैक्टिस करें तो आपको जो है बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। सो द आउटर मोस्ट सरफेस इज़ क्रस्ट which is a very thin layer as compared to the total volume or the thickness of the earth. And after the crust, the mantle, and then the outer core and the inner core. The inner core is solid, while the outer core is liquid. And in the same way, the mantle and then the crust, right? The crust plus the upper mantle is known as lithosphere. लिथोस्फेयर, क्रस्ट और जो है मेंटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है और क्रस्ट जो है, इन दोनों को मिला के क्या चीज़ बनती है? लिथोस्फेयर। ये आपको आप बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस इज यू draw it once or twice and write down all these things. Once you'll make it, you'll remember it. Remember, there is no shortcut to hard work. You have to draw it. If you'll draw it and then write it, I'm sure that you will remember it. Okay? इसको आपने ड्रॉ करना है ज़रूर, और ये लिखना भी है सारा कुछ, यानी इनर कोर कौन सी होती है, आउटर कोर, then from where the mental starts and at the last is crust, right? And then you should know that inner core is solid and the outer core is liquid. Outer core is liquid. This is core
this is mantle and this is crust. Core from here to here, and then the mantle and then the crust. Okay, so now when we have finished this uh, page, and we'll again revise this ki depth 5 to 7 kilometer in the oceanic areas, right? Ocean thickness is 5 to 6 kilometer. The crust, it is the thickness of the crust, while in the continental thickness is 30 to 40 kilometers, right? And the oceanic crust age is 200 million years old. यानी समुद्रों के नीचे जो क्रस्ट बनी हुई है ना, जो नीचे वाली, उसको मेंटल या आउटर को इनर कोर से जो अलग करती है, वो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है. इट्स जस्ट 200 ईयर्स, 200 मिलियन ईयर्स ओल्ड है. ठीक है, ओके. Okay, next, after the crust of the earth, next thing that we will study is the mantle. Crust and then the mantle. The second layer of the earth beyond the crust is the mantle, which is very hot and composed of dense rocks. The mantle is about 2900 kilometer in thickness. It is nearly 84% of Earth's volume, and 67% of the Earth's mass is occupied by mantle. The density of the mantle is higher than the crust, ranging from 3.3 to 5.4 grams per centimeter cube. The upper part of the mantle is the lithosphere, that is 0 to 100 kilometer, and the lower part is the asthenosphere. It is between 100 to 250 kilometers. The asthenosphere is the main source of magma, and in this layer tectonic activity takes place. Okay, ये जो आपको मैं पहले थोड़ा सा उर्दू में बता दूं कि ये क्या चीज़ है. जो ज़मीन की सबसे बाहर वाली तह है ना, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं हम? क्रस्ट. ठीक है, सख्त सी जो ज़मीन की. इसके बाद जो नीचे चीज़ आती है उसको बोलते हैं मेंटल. क्रस्ट तो हमने देखा है बहुत पतली सी है, तकरीबन हमने कहा कि 8 से 40 किलोमीटर टोटल इसकी चौड़ाई है, ज़मीन की टोटल मोटाई के हिसाब से अगर देखें. जबकि मेंटल जो है ये तकरीबन इसकी चौड़ाई जो है 2900 किलोमीटर है, और ये इसका वॉल्यूम इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा है, कि यानी इसका वॉल्यूम 84% है टोटल ज़मीन के वॉल्यूम का. ठीक है, और इसका मैस जो है 67% है. ठीक है, और इसकी जो डेंसिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा है. जिस तरह वो क्रस्ट की डेंसिटी थी उससे भी काफ़ी बहुत ज़्यादा है. ये इसकी डेंसिटी जो है 3.3 से 5.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर क्यूब है. ठीक है, इतनी ज़्यादा डेंस है, इतने ज़्यादा इसके पार्टिकल्स आपस में करीब करीब हैं. द अपर पार्ट ऑफ द मेंटल इज लिथोस्फेयर. जो मेंटल के भी दो हिस्से हैं ना, हमने पढ़ा था कि मेंटल का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर, जो कि 0 से 100 किलोमीटर तक है. एंड द लोअर पार्ट इज़ द एस्थेनोस्फेयर. जो लोअर पार्ट है उसका ऊपर वाला लिथोस्फेयर है, और नीचे वाला क्या है? एस्थेनोस्फेयर, जो कि 100 से 250 किलोमीटर तक चौड़ाई है, उसकी जो मोटाई है. द एस्थेनोस्फेयर इज़ द मेन सोर्स ऑफ मैग्मा, एंड it is the layer and in this layer tectonic activity takes place. अभी हम लेयर टेक्टोनिक एक्टिविटी के बारे में अगले चैप्टर इसमें सबक में पढ़ेंगे. मगर ये है कि जी ये जो इसको होता है ना मैग्मा, ये पिघली हुई चट्टानें जो होती हैं ना, पिघली हुई चट्टानें, लावा, उसको बोलते हैं मैग्मा. ये सारा जो है मैग्मे की, इसका जो है ना मैग्मा इसकी वजह से बनता है. ठीक है, सो हमने मेंटल को देख लिया कि सबसे ऊपर वाली सतह थी, दैट वाज कोर, एंड देन इज मेंटल. कोर के बाद क्या है? मेंटल है. मेंटल जो है वो क्या है? हमने कहा कि ये बहुत चौड़ी है, और जो मेन ज़मीन का वॉल्यूम जो है ये क्या है? इसी पे, यानी कि पूरा टोटल वॉल्यूम का 84% जो है ना, 84% जो है ज़मीन का वॉल्यूम जो है ये मेंटली है. और उसकी जो ज़मीन की मैस है
उसका 67% है। ठीक है, तो ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जी ज़रूरी नहीं होता कि जी मैस और वॉल्यूम बराबर हों। कई दफ़ा जो मैस होता है वो कम होता है तो वॉल्यूम ज़्यादा होता है। ठीक है, ओके। डेंसिटी ऑफ द मेंटल इज़ हायर देन द क्रस्ट, रेंजिंग फ्रॉम 3.3 से, जो इसकी डेंसिटी है, जो उसकी आपस में इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इतने करीब हैं कि इसकी डेंसिटी को हम क्या कहते हैं कि ये इसकी डेंसिटी जो है 3.3 से 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है जी। अपर पार्ट ऑफ द मेंटल को हम कहते हैं लिथोस्फेयर और लोअर पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है, अपर पार्ट जो है छोटा है, जो 0 से 100 किलोमीटर तक है, और जबकि जो है एस्थेनोस्फेयर ये 100 से 250 किलोमीटर नीचे गहरा है। जो एस्थेनोस्फेयर जो होता है ना, यही जो है बहुत गर्म होती है ये जगह, तो यहाँ पिघला हुआ लावा जो है सारा होता है, और उसके ऊपर जो ज़मीन की ये मुख्तलिफ जो हमारे ज़मीन की प्लेटें सी जो क्रस्ट की फिरती रहती हैं ना, उसके ऊपर जो घूमती रहती हैं, ये अभी अगले उसमें हम पूछेंगे, अगले सबक में पढ़ेंगे कि इनको बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। तो ये इधर सारी एक्टिविटी इनके ऊपर होती है। ठीक हो गया जी। अब हम आ जाते हैं कोर की तरफ। अर्थ's कोर इज मोस्टली मेड ऑफ आयरन एंड निकल। जो हमने कहा ना, सबसे ऊपर वाली क्रस्ट जो है वो तो हमने कहा सिलिका और एल्युमिनियम की बनी हुई है, जबकि उसके नीचे पिघली हुई चट्टानें हैं, और उसके अंदर सबसे ज़मीन के अंदर जो है वो क्या है, लोहा और निकल जो है ना इसका बना हुआ है, बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, कोर कॉन्स्टिट्यूट्स 15% ऑफ द अर्थ's वॉल्यूम एंड 32.5% ऑफ अर्थ's मैस। देखो अभी यहाँ पर मैस जो है ना ये ज़्यादा है और वॉल्यूम कम है। बाकी जगहों पर हमने देखा वो मेंटल में भी और जो क्रस्ट में भी जो हमारा जो वॉल्यूम होता था वो ज़्यादा होता था और मैस कम होता था। ये इसलिए कि ये क्योंकि बिल्कुल लोहे और निकल का बना हुआ है, बहुत सॉलिड है, बिल्कुल करीब करीब इसके जो जितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बहुत करीब होते हैं। सो इसका जो है ना मैस बहुत ज़्यादा 32.5% है और वॉल्यूम इसका सिर्फ 15% है। द कोर इज़ द डेंसेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ स्ट्रक्चर। जो कोर जो है ज़मीन का सबसे घना, बहुत ही घना जगह है, यानी कि बहुत डेंस है, आपस में इसके मॉलिक्यूल्स बहुत तंग आपस में हैं, बिल्कुल साथ साथ जुड़े हुए हैं। इट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू 2 लेयर्स, दैट इज़ द लिक्विड आउटर कोर एंड द इनर सॉलिड कोर। ठीक है, इसको भी 2 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं हम कि जी ये भी जो है ना इसकी जो बाहर वाली जो कोर का जो बाहर वाली है ना तकरीबन वो थोड़ा सा लिक्विड टाइप का है, जबकि अंदर वाली बिल्कुल सॉलिड है। द कोर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय गुटनबर्ग्स डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, ये एक हमारे गुटनबर्ग ने एक हमारे एक थ्योरी दी थी, उसके मुताबिक उसने कहा कि जी मेंटल जो है वो कैसे अलग हुआ है, कोर और मेंटल के साथ कैसे हुआ है। ये एक उन्होंने एक थ्योरी है गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी, वो हम कभी पढ़ेंगे कि यानी ये एक अलबत्ता ये है कि ये अलग हैं एक ख़ास अंदाज से, जिसको बोलते हैं गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी। ठीक है, द लिक्विड outer core. This layer is composed of nickel and iron and is in liquefied form. It has the same composition as the inner core. The thickness of the layer is about 2250 kilometers. अच्छा, जो इसकी आउटर लेयर है ना वो तकरीबन को माया हालत में है। ठीक है, माया सी की हालत में है, और इसकी मगर है ये वही चीज़ है जो अंदर वाली जो इनर कोर है और आउटर कोर, मटेरियल एक है, मगर बाहर वाला थोड़ा सा ज़रा वो है लिक्विड सी फॉर्म में है, जबकि इनर कोर जो है वो बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है, द थिकनेस ऑफ दिस लेयर इज़ अबाउट, इसकी जो मोटाई है वो है तकरीबन 2250 किलोमीटर। द इनर सॉलिड कोर, दिस लेयर is also composed of iron and nickel and is in solid state. This is the heaviest layer of the earth. The solid inner core has a radius of 1220 kilometers. अच्छा, ज़मीन के अंदर बिल्कुल जो है ना वो सॉलिड है,
बिल्कुल अंदर जो है, अंदर वाली जो कोर, इनर कोर जो है वो क्या है, वो बिल्कुल सॉलिड है। इस ये मटेरियल वही है जो कि आउटर कोर का है और इसकी इनर कोर का है। यानी कोर जिसको बोलते हैं ना, कोर को भी हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है, ए और बी में। आउटर वाला जो है हमने उसको कहा जरा लिक्विड फॉर्म में, और अंदर वाला जो है सॉलिड फॉर्म में है। तो जो लिक्विड फॉर्म में है वो 2250 किलोमीटर मोटा है, और जो सॉलिड फॉर्म में 1220 किलोमीटर है। मगर जो लिक्विड जो है ना इसमें, जो सॉलिड फॉर्म में, ये तो इसकी तो बहुत ही हैवी है ये, ठीक है, इसके मैस बहुत ज़्यादा होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो है ना, एक हम देख रहे हैं, ये एक तस्वीर जो है ये भी आपको बनानी पड़ेगी 2-3 दफ़ा, तब आपको ये याद हो जाएगी, राइट। कि हम लिथोस्फेयर, एस्थेनोस्फेयर और मेसोस्फेयर एंड बैरिस्फेयर, ये 4 स्फीयर्स हैं जिनको आपको बनाना पड़ेगा। ये इनर कोर, आउटर कोर, लोअर मेंटल, अपर मेंटल एंड क्रस्ट। यानी ये ज़मीन की हमने अगर दरमियान से को काट दिया जाए ना, तो उस सबसे अंदर जो है उसके हमें नीचे नज़र आएगा क्या, इनर कोर, फिर आउटर कोर, फिर लोअर मेंटल, फिर अपर मेंटल और फिर क्रस्ट, राइट। अब इसको क्रस्ट और जो है ना थोड़ा से मेंटल के हिस्से को मिला के बनती है कौन सी, लिथोस्फीयर। फिर ये अपर और नीचे जाके लोअर मेंटल के हिस्से को हम बोलते हैं क्या नाम है, मीजोस्फेयर। दरमियान में हमारा एस्थेनोस्फेयर है, ठीक है। और ये बैरिस्फेयर है जो कि आउटर कोर और इनर कोर को जाके मिलाता है, ठीक है जी। आउटर कोर और इनर कोर को जो है, इन दोनों को मिल के बनते हैं क्या, बैरिस्फेयर, ठीक है। अब एक को बोलते हैं, नीचे वाले को, लेहम डिसकॉन्टिन्यूटी और गुटनबर्ग डिसकॉन्टिन्यूटी और रेपेटी डिसकॉन्टिन्यूटी एंड मोहो डिसकॉन्टिन्यूटी और कोनार्ड डिसकॉन्टिन्यूटी। ये तस्वीर को आपने इसी तरीके से याद करना होगा, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा समझने की जगह आपको ये चीज़ें ये बस याद करनी होंगी। ओके, एक और फैक्ट है कि डू यू नो दैट द ट्रांजिशन द the transition zone between hydrosphere and crust is termed as Conard discontinuity. Conard discontinuity, ये वाली जो है Conard discontinuity, ठीक है जी। the transition zone the ट्रांजिशन जोन, यहाँ पर भी ट्रांजिशन था, ये आई इधर नहीं लिखा हुआ, तो ये ट्रांजिशन जोन बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल इज कॉल्ड मोहोरोविक मोहोरोविसिक discontinuity. The transition zone between upper mental and the lower mental is called rapid discontinuity. The transition zone between the mental and the core is called Gutenberg's discontinuity. It was identified by Richard Gutenberg in 1912 at a depth of 2900 kilometers beneath the Earth's surface. ये मैंने जिस तरह बताया ना, ये इनको जो बताया कि जो मुख्तलिफ जो सतहों को तकसीम किया है, ये मुख्तलिफ लोगों ने इसको दरियाफ़्त किया है। तो गुटनबर्ग ने जो है ना दरियाफ़्त किया था इस चीज़ को, इसका नाम इसलिए गुटनबर्ग्स डिसकॉन्टीन्यूटी रख दिया गया। 1912 में उन्होंने दरियाफ़्त किया था और उन्होंने कहा कि इट इज़ ये 2900 किलोमीटर जो है ना ज़मीन की सरफेस से ये है, ठीक हो गया जी। अभी थोड़ा सा आपको इस वक्त जोग्राफिया खुश्क सा, पेचीदा सा लग रहा होगा, पर आस्ता 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 आपको चीज़ें जब एक दफ़ा आपके दिमाग में आ जाएंगी, आपको बोलनी आ जाएंगी, तो आस्ता आस्ता ये चीज़ें आप जब दोबारा कहेंगे ओहो यार ये तो बड़ा आसान था। तो आपने थोड़ा सा मेरे साथ चलना है। शुरू में आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेंगे अल्फाज भी, मैं भी कोशिश करूँगा, कई दफ़ा अल्फाज पढ़ने मेरे लिए भी मुश्किल हो जाते हैं। सो आपने परेशान नहीं होना, ये आप 1-2 दफ़ा पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक हो गया जी। सो हम विल कीप ऑन डूइंग, कीप ऑन रिपीटिंग,
और उससे हमें क्या होगा, इंशाल्लाह हम बेहतर से बेहतर होते जाएंगे। इस जोग्राफिया में हमने बड़ा सिंपल सी चीज़ें पढ़ी हैं ज़मीन के बारे में। मोटी मोटी चीज़ें तो ये थी कि हमने क्रस्ट, मेंटल, कोर के बारे में पढ़ा है। क्रस्ट की हमने कंपोजिशन पढ़ी, मेंटल की पढ़ी और कोर की पढ़ी। कोर की ज़्यादा डिटेल में पढ़ी है, सबसे कम डिटेल में हमने पढ़ी है जो है ना अपर मोस्ट जो हमारी थी क्रस्ट की, उससे ज़्यादा हमने थोड़ा सा मेंटल के बारे में पढ़ा, फिर कोर के बारे में पढ़ा। ठीक है ना जी। तो ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद रखें, तो आस्ता आस्ता जब हम दोबारा इसको रिपीट करेंगे तो ये इंशाल्लाह हमें मज़ीद क्लियर हो जाएंगी। ओके ओके। अभी जो है ना मैं आपको तफसील से ज़रा समझाऊंगा। ये जो आपने शुरू में पढ़ा है ना कि क्रस्ट, मेंटल और कोर, क्रस्ट, मेंटल और कोर जो है इनके बारे में पढ़ा था, तो वो तस्वीर ज़रा इतनी क्लियर नहीं थी, तो आई थॉट कि आई शुड गिव यू अ बेटर पिक्चर। तो ये हम देखते हैं कि क्रस्ट जो है, ये क्रस्ट जिसको बोलते हैं ऊपर वाली जो है, इसको क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट इज़ 0 to 100 किलोमीटर, 0 to 100 किलोमीटर तक जो है ना थिक है ये क्रस्ट जो है ये वाली। ठीक है। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके बाद जो है ना ये मेंटल है और उसके बाद ये कोर है। अच्छा, कोर, ये वाली कोर देखे हैं, ये मेंटल है और ये क्रस्ट है। अब कोर के दो हिस्से थे, एक सॉलिड कोर है और एक लिक्विड कोर है। ठीक हो गया, इट्स वेरी सिंपल। वन पार्ट इज a सॉलिड कोर एंड अदर इज a लिक्विड कोर। देन अगेन मेंटल जो है, मेंटल में भी एक जो है उसकी अपर पार्ट है और एक इसका लोअर पार्ट है। अपर पार्ट है और उसका लोअर पार्ट है। ठीक है। अब ये आपको थोड़ा सा बताना बड़ा ज़रूरी है कि जी ये इनके दो पार्ट्स जो है ना, इनको आस्ता आस्ता इनके इंसान को फ़ायदे नज़र आते हैं कि ये अगर आपको पता हो तो। ये अपर पार्ट जो है उसको क्या बोलते हैं हम, एस्थेनोस्फेयर। क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है। सो एस्थेनोस्फेयर भी हमें क्लियर हो गया। ठीक है। अब एक होती है ये लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर क्या होती है कि जी क्रस्ट एंड द अपर मोस्ट सॉलिड मेंटल, ये मेंटल का जो ऊपर वाला पार्ट है और क्रस्ट को मिला के जो बनता है उसको बोलते हैं लिथोस्फेयर। ठीक है। उसके बाद वाला जो है ये क्या कहलाता है, एस्थेनोस्फेयर। ठीक है। अब हमारे पास ये जो कोर है, कोर जो है, कोर में भी हमने बताया कि जी कोर बड़ा सॉलिड किस्म का है, या यहाँ पर रॉक्स हैं जो कि पिघली हुई रॉक्स हैं। ये सारी सारी ये जो निकल और जो है इसमें निकल और मेटल जो है ये सारा ये भी पिघला हुआ है और ये वाला बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है। इनर कोर इज टोटली सॉलिड, आउटर कोर इज अ बिट ऑफ लिक्विड। देन मेंटल में भी ये नीचे वाली जो है ये दिस इज लिक्विड और ऊपर वाली जो है ना ये बिल्कुल सॉलिड है। ठीक है। सो ये हमें थोड़ा सा मज़ीद क्लियर होना चाहिए कि हमारा ये जो हमें ये टोटल दिखाया जा रहा है 6378 किलोमीटर्स का, ये हमारा रेडियस अर्थ का बताया जा रहा है। ठीक है। अर्थ की मोटाई तो इसे डबल हो जाएगी ना फिर। ठीक है। सो ये अभी हमें थोड़ा सा इस डायग्राम को अगर एक दो दफ़ा आप बनाएंगे तो ये आपको एक दफ़ा क्लियर हो जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ये डायग्राम को बिल्कुल याद कर लें। आप एक दो दफ़ा बनाएं, आपके दिमाग में रह जाएगी और बहुत अच्छा आपके लिए बाद में आसानी हो जाएगी। ठीक है। अब आ जाते हैं हम, ये एक लफ्ज़ आपने पढ़े थे कि डिसकॉन्टीन्यूटी, ये कनॉट डिसकॉन्टीन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर क्रस्ट। ठीक है। अच्छा, यानी कि जो चीज़ नीचे वाली चीज़ को ऊपर वाली चीज़ से अलहदा करती है तो उसको क्या बोलते हैं, डिसकॉन्टीन्यूटी। ठीक है। ये काफ़ी सारी किस्म की डिसकॉन्टीन्यूटीज़ हैं कि जैसे एक कनॉट डिसकॉन्टीन्यूटी है, ये अपर और लोअर क्रस्ट को आपस में जो तकसीम करती है। ठीक है। ये अपर और लोअर क्रस्ट को आपस में तकसीम जो करती है दैट इज़ नोन एज कनॉट डिसकॉन्टीन्यूटी। इस तरह मोहरोविक डिसकॉन्टीन्यूटी बिटवीन लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल। ठीक है जी। इस तरह रिपीटी डिसकॉन्टीन्यूटी बिटवीन अपर एंड लोअर मेंटल, एक गुटनबर्ग डिसकॉन्टीन्यूटी बिटवीन लोअर एंड लोअर मेंटल एंड आउटर कोर, और लेहमन डिसकॉन्टीन्यूटी बिटवीन आउटर एंड इंडर कोर। ये आपको सिर्फ जहन में होने चाहिए। ये समबडी में आस्क यू, मगर यह कि जी ये सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए आपको मैंने ये डायग्राम अलग से बनाई है। इसमें कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस डायग्राम को भी एक दो दफ़ा अगर आप बनाएंगे,
बस सिंपल पेंसिल से अपने इस पे नोटबुक पे बना लें एक या दो दफ़ा, तो आपके जहन में काफ़ी हद तक रह जाएगी। फिर जब एक दफ़ा अपने हाथ से खुद बनाई भी होगी तो इट विल बी ईजियर फॉर यू टू रिमेंबर, राइट। तो जो इन डायग्राम्स को बना लेंगे तो आपको बहुत एडवांटेज हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। हमें को मशवरा देना चाहें तो आप हमारी जो है इसमें डायलॉग बॉक्स में बिल्कुल हमें मशवरा भी दे सकते हैं। और अगर आपको हमारा चैनल पसंद आए तो दूसरे दोस्तों को भी बताएं, ताकि हम मिल के इस जोग्राफिया को आसान करके पढ़ सकें। ठीक हो गया जी। हमने हमारा मकसद जो है इस जोग्राफी को आसान करके पढ़ना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों के ताउन के साथ हम इंशाल्लाह बेहतर से बेहतर पढ़ते जाएंगे।